آپ نے فرمایا انتظانی حلیلۃ جارک، اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرنا۔ زنا تو کسی بھی عورت کے ساتھ کرنا حرام ہے، پڑوسی کا ذکر آپ نے خاص طور سے اس لیے کیا کیونکہ پڑوسی کے اوپر بھروسہ کرتا ہے۔ اگر کوئی اپنے پڑوسی کے ساتھ وشواس گھات کرے، پڑوسی کے بھروسے کا خون کرے تو یہ ڈبل گناہ ہے، یہ گناہ پر گناہ ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے پڑوسی کا خاص طور سے ذکر کیا۔ تو یہ تین بڑے بڑے گناہ ہیں۔ رحمان کے خاص بندے نہ تو شرک کرتے ہیں، نہ قتل کرتے ہیں، نہ زنا کرتے ہیں۔ اور اللہ آگے کیا کہتا ہے؟ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى ساما، اور جو بھی انسان شرک کرے گا، کسی نردوش کی ہتیا کرے گا یا زنا کرے گا، وہ بہت بڑی مصیبت اٹھائے گا اور بہت بڑے گناہ میں پڑ جائے گا۔ یضاعف لہ العذاب یوم القیامۃ ویخلد فیہ مہانا، اور ہمیشہ وہ جہنم کی آگ میں جلتا رہے۔ لیکن ہاں، زنا کرنے والا بھی توبہ کر لے۔ دنیا والے کہتے صبح کا بھولا شام کو لوٹ جائے، تو بھولا نہیں کہتے۔ اللہ کہہ رہا ہے اگر زنا کرنے والا، قتل کرنے والا، شرک کرنے والا بھی سچی توبہ کر لے، میں اسے سویکار کرنے کو تیار ہوں، میں اسے قبول کرنے کو تیار ہوں۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ جو توبہ کرے گا، جو ایمان لائے گا اور جو نیک عمل کرے گا، اب تک جتنا گناہ کیا گناہ کر لیا، اب تک جتنا غلط کام کیا کر لیا، اب توبہ کر لیا اور ایمان کے راستے پر آ گیا اور نیک عمل کر لیا، تو اللہ کیا کہتا ہے؟ ہم ایسے لوگوں کے گناہوں کو نیکی میں بدل دیں گے۔ اب تک جتنے کرائم کیے، جتنے گناہ کیے، جتنے پاپ کیے، ہم ان کے پاپوں کو، ان کے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور اس کو ٹرانسفر کر دیں گے نیکیوں میں۔ میرے پیارے ساتھیوں، توبہ کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، انسان نمازیں پڑھے، صدقہ خیرات کرے، اللہ کی راہ میں اپنی دولت اور اپنے مال کو خرچ کرے۔ اگر آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے ہاں مجھ سے زندگی میں کچھ گناہ ہوئے ہیں، تو توبہ کا طریقہ ایک یہ بھی ہے کہ آپ جس طریقے سے آج کے اس پروگرام میں آپ کو موقع مل رہا ہے کہ آپ عیدگاہ کی زمین کے لیے ایک صدقہ جاریہ آپ دیں، آپ یہاں پہ آئیں اور اپنا چندہ ضرور لکھوائیں اور دیں، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ کو قبول کرے۔ جو توبہ کرے گا اور نیک عمل کرے گا اور ایمان کے راستے پر چلے گا، اللہ کہہ رہا ہے اس کے گناہوں کو ہم نیکیوں میں بدل دیں گے۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، اور جو انسان توبہ کرتا ہے وہ صحیح راستے پر واپس پلٹ جاتا ہے، وہ اپنی گاڑی کو یو ٹرن لے کر کے صحیح راستے پر آ جاتا ہے۔ آپ کو کٹیہار سے موہنا چاند پور آنا تھا، صحیح راستے پر آپ چل رہے تھے، اچانک گوگل میپ کے چکر میں غلط راستے پر چلے۔ آج کل گوگل میپ بہت راستہ گڑبڑ بتا دیتا ہے۔ ابھی اتر پردیش میں گوگل میپ کے چکر میں ایک پل کوئی بن رہا تھا، ابھی آدھا ادھورا پل بنا تھا، اس پر 4 ویلر لے کر کے ایک نوجوان چلا گیا اور پل پر سے اس کی گاڑی گر پڑی اور نوجوان بیچارہ انتقال کر گیا، اللہ کو پیارا ہو گیا۔ تو آپ گوگل میپ کے چکر میں غلط راستے پر جب چلے گئے، راستے میں ایک آدمی جا رہا تھا، جلسے میں جا رہا تھا، اس نے کہا بھائی صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے کہا موہنا چاند پور جا رہا ہوں، تو اس نے آپ کو بتایا کہ نہیں، آپ اپنی گاڑی کو موڑ دیجیے، آپ یو ٹرن لے لیجئے۔ تو توبہ بھی یو ٹرن ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ جب آپ توبہ کرتے ہیں، جب آپ نے گناہ کا کام کیا، ہم نے کوئی غلط کام کیا، اس وقت تک ہم غلط ٹریک پر چل رہے تھے، غلط راستے پر چل رہے تھے، جیسے ہی ہم نے توبہ کر لیا، اللہ کہہ رہا ہے فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، ہم اللہ کے راستے کی طرف لوٹ کے چلے۔ اس کے بعد فرمایا یہ 3 لوگوں نے 500 روپے کا تعاون اس عیدگاہ کی زمین کے لیے دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس چندے کو بھی قبول فرمائے، اور جو بھی بھائی ابھی سوچ وچار میں پڑے ہیں، اللہ ان کو توفیق دے کہ وہ آئیں اور اپنی اپنی حیثیت اور کیپیسٹی کے اعتبار سے ضرور اس کار خیر میں حصہ لے کر کے جائیں۔ میں بات کر رہا ہوں قرآن کے 19ویں پارے کی، سورہ فرقان کی آیتوں کو آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اور رحمان کے وشیش بندوں اور خاص بندوں کی کچھ کوالٹیز۔ روڈ کا دکاندار بھائی سے آیا ہے۔ اچھا، کچھ ہے معلوم اس کا کیا ہے؟ روڈ کے دکاندار، اچھا دکانداروں نے دیا، ماشاءاللہ۔ یہ جھولے میں کچھ رقم آئی ہے، اب یہ اس کو لوگ گن کے بتائیں گے کتنی رقم ہے۔ یہ ہمارے سڑک کے جو دکاندار بھائی ہیں، ان لوگوں نے اس کو آپس میں کلیکشن کر کے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے
देखिए, साइड से सब आके चंदा दीजिए, मौलाना के हाथ से मुसाफा कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि कोई 1-2 लाख रुपये चंदा दे तभी चंदा होता है। मस्जिदें बनती हैं, ईदगाह की ज़मीन खरीदी जाती है। मैंने देखा है कोई ऐसा भी अल्लाह का बंदा होता है जिसकी 100 रुपये की ताकत है, वो 100 रुपया बड़े कलेजे से ला के देता है, बड़े दिल के जज्बे के साथ ला के देता है। और एक इंसान 1 लाख रुपया देता है, करोड़पति आदमी 1 लाख रुपया देता है, मगर दिल की तकलीफ़ के साथ देता है। अल्लाह के यहाँ उस करोड़पति का दिया हुआ 1 लाख रुपये का चंदा वो 19 पड़ जाता है, और वो 100 रुपये का चंदा उस गरीब इंसान का अल्लाह के उसका मकाम ज़्यादा बुलंद हो जाता है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, ये ना समझना कि हम तो कोई छोटा मोटा हम क्यों अमाउंट देने जाएं। आप जो भी हो रहा है, यहाँ स्टेज पर लोग बैठ करके चंदा का कलेक्शन कर रहे हैं, आप आइए। मुझे मुनासिब नहीं लग रहा है, मौजू के बीच में बार बार डिस्टर्बेंस भी हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जलसे वालों की बात भी रह जाए। आप आकर के ज़रूर इस ईदगाह में अपना ताउन कीजिए। हमारी जलसा कमेटी के लोग भी चादर लेके जा रहे हैं, और ख़वातीन में भी, महिला पिंडाल में भी मैं गुजारिश करता हूँ कमेटी के लोगों से, वहाँ 2-4 औरतों को सौंप दीजिए, और चादर में आप लोग जो ताउन कर सकते हैं करें। मुझे मुनासिब नहीं लग रहा है बीच में बार बार मौजू को, टॉपिक को छोड़ करके चंदे की बात करना। मैं अपने मौजू को ख़त्म करके इंशाअल्लाह इस कुर्सी से उठूँगा। रहमान के ख़ास बंदों की हम पहचान बता रहे हैं आपको, उनकी विशेषताएं बता रहे हैं, उनकी खूबियाँ बता रहे हैं। अल्लाह ने कहा रहमान के ख़ास बंदे शिरक नहीं करते, ज़िना नहीं करते, कत्ल नहीं करते। और आगे वल्लज़ीना ला यशहदून अज़्ज़ूर, और अल्लाह के ख़ास बंदे वो हैं जो किसी गुनाह के काम में, किसी गलत काम में शामिल नहीं होते। नए साल की रात आ रही है, 31 दिसंबर की रात आ रही है। बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े होटल बुक हो जाएंगे, नाचने गाने वालियां महंगे महंगे अमाउंट के ऊपर उनको हायर किया जाएगा, कई हज़ार का पास और टिकट लगाया जाएगा, और होटलों में महंगे महंगे टिकट दे करके नाच गाना देखने और शराब पीने जाने वालों में मेरे प्यारे साथियों एक बड़ी तादाद में मुसलमान नौजवान और लड़के लड़कियां भी शामिल होते हैं। कुरान क्या कहता है? वल्लज़ीना ला यशहदून अज़्ज़ूर, अल्लाह के खास बंदे झूठी गवाही नहीं देते और किसी गलत काम में शामिल नहीं होते। व इज़ा मर्रू बिल्लग़्व मर्रू किरामा, और जब वो किसी लग़्व चीज़ के पास से गुजरते हैं तो शराफत से गुजर जाते हैं। आप मार्केट में जा रहे हैं, आप रेलवे स्टेशन के पास जा रहे हैं, आप एयरपोर्ट के पास से जा रहे हैं, और कोई लग़्व चीज़, कोई नामुनासिब चीज़ आपकी नज़रों के सामने से आई तो आप अगर उसको देखने लगते हैं या उस गलत काम में आप इन्वॉल्व हो जाते हैं, अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। मेरे प्यारे साथियों, रब्बुल आलमीन अगर आप किसी लग़्व चीज़ के पास से गुजरते हैं तो कुरान क्या कहता है मेरे स्पेशल बंदे? वइज़ा मर्रू बिल्लग़्व मर्रू किरामा, शराफत के साथ वहाँ से गुजर जाते हैं। उसके बाद फरमाया वइज़ा ज़ुक्किरू बिआयाति रब्बिहिम लम यखिर्रू अलैहा सुम्मन व उम्याना, वल्लज़ीना इज़ा ज़ुक्किरू बिआयाति रब्बिहिम, और रहमान के खास बंदों की एक पहचान ये भी है, जब उनके सामने कुरान पढ़ा जाए, जब उनके सामने उनके रब की आयतें पढ़ी जाए, वो अंधे और बहरे बन करके, वो गूंगे और बहरे बन करके नहीं गिर पड़ते हैं। जलसा हो रहा है, तकरीर हो रही है, आप एक कान से सुन करके दूसरे कान से उड़ा रहे हैं, न कुरान की आयतों पर गौर हो रहा है, न मुकर्रिर की आलिम की बातों पर गौर हो रहा है, न अमल हो रहा है। तो याद रखिए मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नेक बंदों का ये तरीका नहीं है। अल्लाह के नेक बंदे क्या करते हैं? वो गौर करते हैं, वो बातों को कैच करते हैं, वो समझने की कोशिश करते हैं, वो अमल करते हैं। वल्लज़ीना इज़ा ज़ुक्किरू बिआयाति रब्बिहिम, रहमान के खास बंदों के सामने जब उनके परवरदिगार की आयतें पढ़ी जाती हैं, लम यखिर्रू अलैहा सुम्मन व उम्याना, वो अंधे और बहरे बन करके नहीं गिर पड़ते। देखिए ये बच्ची रो रही है, बच्ची रो रही है, ये बच्ची को स्टेज पर है, ले जाइए भाई, किनकी बच्ची है, कैसी माँ है, इतनी छोटी बच्ची को छोड़कर कहाँ? कैमरा स्टेज में आके ले जाइए, छोटी सी बच्ची है।
दिखाइए वो स्क्रीन पर। एक बच्चा भैंसा गोविंदपुर का अबुल कलाम बाप का नाम बता रहा है, स्टेज में पहले से बहुत देर से रो रहा है। ले जाइए। मलटेन का रहमान के खास बंदे कुरान की आयतों को सुन करके सुम्म वो उमियाना, अंधे और बहरे बन करके गिर नहीं पड़ते, गौर करते हैं, अमल करते हैं। कुरान की आयतें आज हमारे सामने पढ़ी जाती है, पत्थर दिल हो चुके हैं हमारा। नमाज पर कितनी तकरीरें हो रही हैं, बेनमाजी वैसे के वैसे। ज़िनाकारी पर कितनी तकरीरें हो रही हैं, ज़िना के केसेस कम नहीं हो रहे हैं। शराब पर कितनी बातें हो रही हैं, मगर नशे का रुझान बराबर बढ़ता चला जा रहा है। मेरे प्यारे साथियों, रहमान के खास बंदे कुरान की आयतों को गौर से सुनते हैं और अमल करते हैं। उसके बाद फरमाया वल्लज़ीन यक़ूलून रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीन इमामा। ये रहमान के खास बंदों की आखिरी पहचान अल्लाह बयान करता है। रहमान के खास बंदे वो हैं जो ये दुआएं करते रहते हैं कि ऐ हमारे परवरदिगार, हमारे बीवी बच्चों को हमारी आंखों की ठंडक बना दे। बीवी बच्चे हमारी जिंदगी का बड़ा अहम हिस्सा होते हैं मेरे भाई। हम जब भी खुश होते हैं अपने बीवी बच्चों के साथ खुशी में शामिल होते हैं। हम किसी अच्छी जगह घूमने फिरने जाते हैं, अपने बीवी बच्चों को शामिल करते हैं। क्या अपने बीवी बच्चों को जहन्नम की आग से बचाने की चिंता हमारे दिल और दिमाग में पैदा नहीं होती मेरे भाइयों? देखिए, ये फिर किसी ने 1500 रुपये का ताउन पेश किया है और ये 100 रुपये का भी कुछ ताउन हमारे चंद नौजवानों ने पेश किया था। अल्लाह ताला इन तमाम चंदा देने वालों के चंदे को और दान देने वालों के दान को अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह इनकी जायज़ मुरादों को पूरी फरमाए। ये सामने फ़ोन पे का स्कैनर कोड भी, बार कोड भी लगा हुआ है, जगह जगह इन लोगों ने लगाया है स्टेज के बीच में। आप हजरात जो ऑनलाइन भी पेमेंट करना चाहें ज़रूर इस ईदगाह की ज़मीन के लिए करते हुए जाएं। तो रहमान के ख़ास बंदे अपने बीवी बच्चों के लिए दुआ करते हैं। अगर आपकी बीवी दीनदार नहीं है, आपका बच्चा अगर दीन पर नहीं है, तो कम से कम कुछ नहीं कर सकते। रज़ाकार हजरात से गुजारिश है कि 10 मिनट के अंदर हजरत मौलाना जज्जी साहब उतारा उनको ले आए स्टेज में। 10-15 मिनट के अंदर मौलाना जज्जी साहब को स्टेज में ले आए। तब तक मौलाना अब्दुल गफ्फार के बाद मौलाना मुश्ताक साहब बंगला में 10-15 मिनट ईदगाह के लिए चंदा करेंगे बंगला ज़बान पे, जो देना चाहें दे सकते हैं। रहमान के ख़ास बंदे अपने बीवी बच्चों की चिंता करते हैं। अपने बीवी बच्चों के कपड़े की चिंता तो हम सब करते हैं, बच्चों की दुनिया के फ्यूचर की चिंता तो हम सब करते हैं, लेकिन मेरे प्यारे साथियों, ये ज़मीन, ये जायदाद, ये रुपया, ये पैसा, ये जेवर, ये कपड़ा हमारे बीवी बच्चों के दुनिया में काम आएगा। अपने बच्चों की, अपने बीवी की आखिरत को बनाने के लिए आपने क्या किया? आज कितने लोग हैं, जवान बेटी उनकी पढ़ाई कर रही है कलकत्ता में, रांची में, पटना में, लड़की कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, रातों में किससे मिल रही है, माँ बाप को कोई फिक्र नहीं है। वो तो बड़े फख्र से कहते हैं हमें तो अपनी लड़की के ऊपर भरोसा है। मेरे प्यारे साथियों, भरोसे के नाम पर आंख मूंद लेना और अपनी बेटियों को, अपनी नादान बेटियों को बुराई के अड्डों पे डाल देना, ये अक्लमंदी का सौदा नहीं है, ये फ़ायदे का सौदा नहीं है। अपने बच्चों के अकीदे की फ़िक्र करो, अपने बच्चों की आखिरत की फ़िक्र करो। अल्लाह कह रहा है, मेरे नेक बंदे दुआएं करते हैं, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत आयुन। ऐ परवरदिगार, हमारे बीवी बच्चों को हमारी आंखों की ठंडक बना दे। वजअलना लिलमुत्तक़ीन इमामा, और हमें तो मुत्तकियों का इमाम बना दे। मुत्तकी बनना कमाल नहीं है, मुत्तकियों का इमाम बनना कमाल है। ऐसे मुत्तकी बनो, पूरे गांव के लिए आइडियल बन जाओ, पूरे इलाके के लिए आइडियल बन जाओ। तुम्हारी फैमिली इतनी मुत्तकी बन जाए, तुम्हारी बीवी इतनी दीनदार हो, तुम्हारे बच्चे इतने दीनदार हो कि लोग मिसाल दे कि हाँ, दीनदार ऐसे लोग होते हैं, मुत्तकी ऐसे लोग। इतनी सारी क्वालिटीज़ जिनके अंदर पैदा हो जाएं, अब अल्लाह ताला रिवार्ड क्या देगा, बदला क्या देगा, इनाम क्या देगा, पुरस्कार क्या देगा, ज़रा सुनिए।
उलाइका युजज़ौनल ग़ुरफ़त बिमा सबरू व युलक़्क़ौन फ़ीहा तहियतन व सलामा। अल्लाह कह रहा है इनको अल्लाह जन्नत में कमरा देगा। अल्लाह कह रहा है जन्नत में रूम देगा, कमरा देगा। अभी मुंबई का सफ़र करना है मुझे, मैं ऑनलाइन चेक कर रहा था कि ताज होटल में अगर एक दिन रात गुजारी जाए तो कितना अमाउंट आएगा। तो मैंने इंटरनेट पर चेक किया, बम्बई का बहुत 5 स्टार होटल, बड़ा मशहूर होटल है ताज होटल, एक रात गुजारने का अमाउंट कितना आ रहा था? 50,000 रुपया। 50,000 रुपया एक रात का चार्ज है ताज होटल का, जो हमारे मुंबई शहर का बहुत 5 स्टार होटल है, बहुत बड़ा होटल है। लोग चाय पीने जाते हैं ताज होटल में, लोग बताते हैं 700-800 रुपये की एक चाय होती है। जब दुनिया के 5 स्टार होटलों की इतनी उनकी रौनक है कि एक एक रात का 50-50 हज़ार रुपया चार्ज लोग देते हैं और वहाँ रात गुजारते हैं, तो सोचो मेरे भाइयों, जन्नत तो हमारे तसव्वुर और हमारे इमेजिनेशन से कहीं ज़्यादा खूबसूरत है। और जन्नत के कमरे कैसे होंगे, और जन्नत के महल कैसे होंगे, और जन्नत के खाना पीना कैसा होगा, हम तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अल्लाह कह रहा है ये क्वालिटीज़ अगर आपके अंदर पैदा हो जाएँ, उलाइका युजज़ौनल ग़ुरफ़त बिमा सबरू, ऐसे नेक बंदों को उनके सब्र का फल मिलेगा, अल्लाह उनको जन्नत में दाखिल करेगा। और जन्नत में फ़रिश्ते उनको सलाम करेंगे, फ़रिश्ते उनको सैल्यूट करेंगे, खालिदीन फ़ीहा, और वो जन्नत में हमेशा रहेंगे। हसनत मुस्तक़र्रम व मुक़ामा, और जन्नत बहुत ही बेहतरीन ठिकाना है और बहुत ही बेहतरीन जगह है। मेरे अजीज़ों, ये चंद बातें मैंने आपके सामने सूरह फुरक़ान के हवाले से, कुरान के 19वें पारे के हवाले से आपके सामने रखी है। रहमान के ख़ास बंदों की पहचान, मैं चाहता हूँ कि ये जो पहचान अल्लाह ताला ने बयान की है, इन पहचान और इन विशेषताओं को हम सब भी अपना लें, ताकि अल्लाह ताला ने जो रिवार्ड दिया है, जो बदला दिया है, अल्लाह ताला उन नेक लोगों में हमको भी शामिल फरमा दे। मेरे भाइयों, ये जाते जाते जो भाई इस ईदगाह के लिए ताउन करके जा रहे हैं, अल्लाह ताला इन भाइयों के इस चंदे और ताउन को भी कबूल फरमाए। और मज़ीद जो भाई अब तक पीछे रहे हैं, माँ बहनों से भी गुजारिश करता हूँ, मौलाना जर्जीस साहब थोड़ी देर में आएंगे, उसके पहले एक बेहतरीन तकरीर तो आप सुनेंगे, उसके पहले जो भी आप इस ईदगाह के लिए आप चंदा दे सकते हैं, ताउन दे सकते हैं, वो ज़रूर करके जाएँ। हम अल्लाह से दुआ करते हैं, रब्बुल आलमीन अपने ख़ास बंदों में, अपने रहमान तू अपने विशेष बंदों में हमको भी शामिल फरमा दे, और जिन बुराइयों से वो बचते हैं तू हमें बचने की तौफीक अता फरमा, और जो नेक अमाल वो करते हैं वो नेक अमाल तो हमें सबको करने की